Can you see my notebook? Yes, ma'am. Yes. Okay. So let's revise. Vertical circular motion. This was the circle. This is your highest position, lowest position. Object is moving in an anti-clockwise direction. I'm considering it to be anti-clockwise. Your picture is totally controlled by the gravity. Gravity is controlling the picture. I just one time I have given a push, and after that there is no role of mine over here. मेरा कोई रोल नहीं है अभी यहाँ पे. So basically things are totally dependent on the gravity. So we talked yesterday about the highest position, that your tension in the string and your mg both are in the downward direction. Okay, and we said that we are going to talk in the inertial phase. So of course this tension in the string and mg is somewhere going to provide the centripetal force. So I said that Ta plus mg together is giving me the centripetal force. And then we say that at the highest position, since our kinetic energy is totally converted into potential energy, the tension in the string is negligible at this point because the velocity is minimum. So when the tension in the string is the tension in the string is minimum at this point. So when the tension in the string is minimum and your velocity is minimum, so you say that Ta is equals to 0. This is Va. So basically your mg is equals to mva square upon r, where mm got cancelled and you got the relation as va square is equals to under root of rg. This was our first relation. VA equal to. VA equal to. Sorry, yeah, of course it will be va equals to. This is equation number 2 and this is equation number, 1 and equation number 2. It is clear what I said, everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes. Okay. So there are certain things that you have to remember every time, that you are particularly working under the gravity. No other forces are involved in these factors except the tension in the string. Is this everyone clear what I said? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now let's move ahead with the lowest position. I'm talking about this. So keep it in mind. Highest position is the point where your kinetic is being converted. Most of the kinetic is being converted into potential. It does not mean that कि ये यहाँ पे rest पे हो जाएगा. It does not mean that kinetic पूरा potential में convert हो रहा है. इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा का पूरा convert हो रहा है. There is a certain amount of velocity over here. अगर वो नहीं होता तो ये circular motion perform नहीं कर पाता आगे. ये चीजें जो है वो यहीं से ड्रॉप हो जाती है. ऐसा कुछ तो फिनोमिना हो जाता. सो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है. इट इज नेग्लिजिबल अमाउंट. दैट इज, इसीलिए हमको वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला मिला है. अदरवाइज हमको वेलोसिटी 0 मिल जाती है कंडीशन पे, पर वेलोसिटी 0 नहीं है. ओके, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट बी पॉइंट, दैट इज द लोएस्ट पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो व्हेन आई टॉक अबाउट बी पॉइंट, एट दिस पॉइंट of course your potential energy is going to be minimum somewhere, correct? And Yes. I explained you yesterday that tension in the string is TB, that is acting towards the center of the circle, and mg is towards downward for sure. Downward. Downwards. Here particularly TB is acting towards the center, but the centripetal force which is acted on the body is simply the one which remains after balancing. It means what I want to say is that if TB is 10 Newton, let's say if TB is 10 Newton, your weight of the body is 3 Newton. So basically only 7 Newton will be responsible for the centripetal force. Is this clear what I said? सबको समझा मैंने क्या कहा? Yes. Yes. कुछ अमाउंट mg को बैलेंस करने में चला जाएगा. So बचा हुआ अमाउंट सेंट्रिपिटल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. So let's write this point as at lowest position
that is at lowest point, at the point B. Sorry. And of course still it is in a circular motion. ये circular motion में है, मतलब कहीं ना कहीं सेंटर पे खींचने वाला फोर्स डोमिनेंट है. डोमिनेंट अगर है. ये Dominant, सेंटर yes. पे खींचने वाला फोर्स डोमिनेंट नहीं होता तो ये चीज सीधी सीधे बाहर निकल जाती, सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं करती. Yes. या फिर अगर Yes. mg डोमिनेंट होता तो वो सीधे सीधे नीचे गिर जाती, पर ऐसा कुछ स्ट्रेट भी हो नहीं. जाता. यस, अगर यहाँ पर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है मतलब कहीं ना कहीं टीबी इज डोमिनेंट. सो टीबी माइनस mg is equals to mvb square upon r. Is this clear? Yes. 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 So let's say this is the question number 3. Now, of course, here when I talk about this point, जब मैं इसकी बात कर रही हूँ, इस पॉइंट पे मैंने कहा कि आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आप किस में कन्वर्ट हो चुका होगा व्हेन यू आर एट द लोवेस्ट पोजीशन. काइनेटिक Kinetic एनर्जी. energy. है ना. मतलब अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट से जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी माइनस इस पॉइंट में जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी, इन दोनों का डिफरेंस मेरे को पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता कर देगा. Yes. डू यू एक्सेप्ट दिस? यस. यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ऑफ कोर्स यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी. Minimum. तो इन दोनों का डिफरेंस मुझे बता कर देगा कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे अभी कितना पोटेंशियल एनर्जी बाकी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग? Yes. ये सबको क्लिक हुआ जो मैं बोली? Yes. Yes. Ma'am. यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा. मैंने दोनों में ऐसा नहीं कहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, सॉरी यहाँ पर काइनेटिक जीरो है, ये वर्ड भी मैं यूज नहीं कर रही हूँ, और यहाँ पर पोटेंशियल जीरो में ये वर्ड भी यूज नहीं कर रही हूँ. मतलब कुछ एक अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. ठीक है. सो लेट्स से कि यहाँ पर ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट जो भी और ये मिनिमम पॉइंट है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी हो सकती है और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी इतनी हो सकती है. सो अगर मैक्सिमम में से मिनिमम माइनस हो जाए तो बचा हुआ एनर्जी कहाँ पर क्या हो रहा है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. Potential energy. ये स्टेटमेंट सबको समझा? यस. Yes, ma'am. Yes. ठीक है. सो अगर किसी को ये स्टेटमेंट नहीं समझा कि मैं क्या बोल रही हूँ तो मुझे एक बार फिर से पूछ लेना, आई विल एक्सप्लेन यू दैट. सो basically kinetic energy at lowest position VB and kinetic energy at highest position, इन दोनों का डिफरेंस करूं तो मुझे वो अमाउंट पता चलेगा जो अमाउंट कभी भी पूरी तरीके से काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होता. अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से यहाँ आने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी अभी भी बॉडी में पड़ी हुई है. इज दिस क्लियर? Yes. Yes. यस. Yes. अब मुझे बताओ कि इफ यू लुक एट दिस, यहां से यहाँ वो पॉइंट आ रहा है तो कितना हाइट कवर कर रहा है? हाउ मच इज द हाइट कवर? 2 आर. 2 hours. 2 आर. 2 hours. 2 आर. ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा तो इज अ डायमीटर. सो हाइट कवर्ड इज 2 आर और हमको पता है आपकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज MGH. 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 जी. h की जगह पे भी आई वांट टू सब्स्टिट्यूट 2 2 आर. आर. इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes. यस. I'm confused. So VB square minus VA square, मैं ये 2 को यहाँ भेज देती हूँ. mm got cancelled on all the sides, so this becomes basically 4rg. ये सबको समझा क्या किया? Yes. ये 2 को कॉमन करके ये साइड भेज दिया तो 2 2 जा 4 हो गया. r वैसे ही है और g वैसे ही है. mm got cancelled on left hand side and right hand side. Is this clear? Yes. Yes. यस. Let's say this is equation 4. ठीक है. अभी we saw that what is VA? VA is under root of RG. Let's substitute this here. So VB square minus VA square है तो RG हो जाएगा वो.
Rg is equals to 4 Rg. So Vb square will be your 5 Rg. That is Vb is equals to under root of ये सबको क्लियर है what I have done? Yes. Yes, ma'am. Yes. लिख के ले लो. मैम वो डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देगा ना? Of course. Yes. That is वहां से वहां जाने में कितना see of course ये तो सिंपल सा फंडा है ना कि like when you are at the highest position you are having a maximum potential energy and when you are coming to the lowest position you will have a minimum potential energy, right? So of course Yes. ये वो अमाउंट दे रहा है जो अमाउंट काइनेटिक में कन्वर्ट ही नहीं हुआ है. समझ में आया what I said? जो अमाउंट अभी भी पोटेंशियल में पड़ा हुआ है. So Yes, that ma'am. is what it is talking about. That it is talking about a change in the potential energy. यहाँ पर potential energy ज्यादा था. अब जब यहाँ से आप नीचे आए पोटेंशियल कन्वर्ट होता गया काइनेटिक में यहाँ तक पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ. अब मैंने ये देखा कि मेरा पूरा पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हुआ है, कुछ अमाउंट बचा है. तो यहाँ पर जितना भी काइनेटिक था और यहाँ पर जितना भी काइनेटिक था मैंने दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया. दोनों का सबट्रैक्शन देखने के बाद मुझे पता चला कि ओके ये अमाउंट तो मुझे वापस ये अमाउंट का पोटेंशियल वापस काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं हुआ है. नहीं हुआ है. Just यस किया. मैम समझा. Yes. ये हो जाए तो लेट मी नो. मेरा जो अमाउंट निकला है वो हमेशा पोटेंशियल में ही रहेगा क्या? क्या बेटा फिर से बोल. जो अमाउंट जो निकला है वो हमेशा पोटेंशियल में ही रहेगा? mg2r की बात कर रहा है. Yes, yes. हाँ Yes, मैम. चेंज नहीं होगा ना, मतलब पूरा हमेशा पूरा पोटेंशियल में ही रहेगा? हाँ ऑफ कोर्स उतना अमाउंट रहेगा ही रहेगा चाहे आप कुछ भी कर लो. दैट इज गोइंग टू लाइक कभी बॉडी का पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होता. ये बात तो फिक्स्ड है क्योंकि हमेशा आप किसी ना किसी पोटेंशियल के अंदर ही बैठे हो तो वो वर्क जीरो होता है. सी ये स्टेटमेंट मेरा पूरी तरीके से रॉन्ग है कि पोटेंशियल जीरो नहीं होता जब आप उस सिस्टम के अंदर नहीं बैठे हो. तो मैंने कहा अगर आप किसी सिस्टम के अंदर बैठे हो तो आपका बॉडी का पोटेंशियल कभी जीरो नहीं होता जब तक आप उस सिस्टम के अंदर हो. आप स्पेस वगैरह में चले गए तो बात अलग है, वहां पे कुछ अलग ही दुनिया चलती है. यस. हो गया तो लेट मी नो सो दैट वी कैन Yes, गो ma'am. नेक्स्ट Yes, कंडीशन. ma'am. लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कंडीशन. अभी टेंशन के बारे में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले वेलोसिटीज के बारे में सारा डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. नाउ लेट्स टॉक एट पॉइंट डी. ऑफ कोर्स टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टुवर्ड्स दिस पॉइंट TD और mg तो ऐसे ही पूरा सीधा की तरफ नीचे लगने वाला है. This is going to be part. ठीक है. And of course here it retards. Retarding होने का मतलब है कि वेलोसिटी कम होना. सिंपल सा फंडा है. यहाँ से ऊपर जा रहा है क्या होगा? वेलोसिटी कम होगा. काइनेटिक किस में कन्वर्ट होती जाएगी? पोटेंशियल. पोटेंशियल में. तो काइनेटिक कम होती जा रही है मतलब ऑफ उसका स्पीड कम होता जा रहा है. स्पीड कम होता जा रहा है मींस इट इज रिटार्डिंग. समझा? और वही चीज यहाँ पर क्या होगी? यहाँ से पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होता जा रहा है. एक्सेलरेट At this होगा. point it is going to accelerate. So this is Yes. going to take place of course. Yes. So let's see at the point C and D both. ठीक है. Now सेम फिनोमिना पे बात करेंगे. ये पॉइंट से स्टार्ट किया है और ये पॉइंट तक समझो आए हैं, या ये पॉइंट से स्टार्ट किया है ये पॉइंट तक आए हैं. ऐसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है. तो चलो ऐसे बात करते हैं. ये पॉइंट से स्टार्ट किया ये पॉइंट तक आए हैं. ऑफ कोर्स अगर ये पॉइंट से स्टार्ट किया है और ये पॉइंट तक आए हैं तो व्हाट डू यू फील? क्या लगता है काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस किस तरीके से कैलकुलेट करोगे?
Kinetic energy at point C TCM minus kinetic energy at point A. point A. पॉइंट सी माइनस पॉइंट ए, और कुछ सोच सकते हो? मैम जितना पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगा डी से जाने के लिए उतने काइनेटिक एनर्जी बनेगा ए से सी जाने के लिए. यस, और कुछ? ए से बी अब में यहाँ जितना पर रहेगा उससे हाफ रहेगा ए से सी तक जाने के लिए. अब यहाँ पर ये तो समझ ही सकते हो कि समवेयर टेंशन का कोई रोल नहीं है एमजी को बैलेंस करने में. यस. दिस इज टीसी एंड दिस इज एमजी. टेंशन का कोई कंपोनेंट ही नहीं है एमजी को बैलेंस करने के लिए. 90 डिग्री पे. यस, तो सीधा सीधा वो नीचे ही जाने वाला है. ये तो एक चीज पता चल रही है. So what basically we can think about? सोचो और बताओ. और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जो चाहिए मुझे बोलते वक्त, तो जरा इसके बारे में सोचो कि क्या बोल सकते हो. what else you can think of. एक बात तो क्लियर है कि my potential is being converted into kinetic for sure. दूसरी बात मैंने जो कि बताई कि टेंशन इज nowhere going to balance your, मतलब टेंशन का कोई भी अमाउंट आप बैलेंस नहीं करने वाला है आपके एमजी को. मतलब पूरी तरीके से टीसी सेंट्रीपिटल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. बट नेक्स्ट व्हाट? Next, what do you think? Now ये पॉइंट पे अगर आप बात करो तो टोटल एनर्जी विल बी सिंपली एडिशन ऑफ, मतलब एट द पॉइंट सी कोई भी चीज मैक्सिमम या कोई भी चीज मिनिमम नहीं होने वाली है. एट द पॉइंट सी कोई भी चीज मैक्सिमम या कोई भी चीज मिनिमम नहीं होने वाली. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस. ये चीज मुझे सुननी थी आपकी तरफ से कि व्हेन आई टॉक अबाउट दैट पॉइंट सी, हम अब यहाँ पर कोई चीज काइनेटिक, जैसे इस पॉइंट पे मैंने कहा कि पोटेंशियल मैक्सिमम है काइनेटिक मिनिमम है. यहाँ पे मैंने कहा कि काइनेटिक मैक्सिमम है पोटेंशियल मिनिमम. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. एट दिस पॉइंट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस. there will be a certain amount of kinetic energy and there will be a certain amount of potential energy. So total energy at this point, basically total energy at this point, at the point C, let's talk at the point C. Is simply your half m VC square plus mgr, and of course mgr क्यों यहां से यहां आया है, तो उसने कितना पहले इस पॉइंट पे था ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आया है. जस्ट वेट. इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो कितने का डिस्टेंस का डिफरेंस आ रहा है? आर. आर का आ रहा है, दैट इज फॉर श्योर. सो अगर आर का आ रहा है तो ऑफ कोर्स पोटेंशियल वैल्यू लिखते वक्त हम mgr लिखेंगे. अब आगे क्या कर सकते हो? व्हाट यू कैन थिंक फर्दर?
further what we can go for? Think about it and मैं answer. 20 Left hand side में से क्या डालूं so that I can proceed with the relation? मैम डी का भी सेम आएगा इसके इससे जैसे ही किसका? डी पॉइंट डी पे जो आएगा ना टोटल हाँ, एनर्जी point D वो भी- पॉइंट सी से सेम आएगा। हाँ वो ठीक है, उससे मेरा क्या रिलेशन आगे जाएगा? दोनों इक्वल आएगा तो वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। उससे वीसी और वीडी में रिलेशन मिलेगा। उससे क्या होगा? वीसी और मैम वीडी उससे से मिलेगा कि वीसी और वीडी इक्वल है ऐसा मिलेगा। सी, अगर मैं वीसी और वीडी को लेती भी हूँ वो मुझे इक्वल भी मिलता है कि ठीक है सेम अमाउंट से एक्सेलरेट कर रहा है और सेम अमाउंट से डी एक्सेलरेट कर रहा है। वो सारे फिनोमिना से मैं वीसी और वीडी के रिलेशन पे तो डिराइव नहीं करती, मुझे वीसी और वीडी का रिलेशन डिराइव करके चाहिए। थिंक अबाउट इट, व्हाट यू पीपल कैन डू। सोचो, टोटल एनर्जी का कोई कंसेप्ट लगा सकते हो क्या? मैंने यहाँ पर टोटल एनर्जी वर्ड यूज किया है। यू कैन अप्लाई सम कंसेप्ट ऑफ टोटल एनर्जी, जस्ट थिंक अबाउट इट। ये जो टोटल एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा तो दो इक्वेट कर सकते हैं दूसरे टोटल एनर्जी। यस यस, मुझे बताओ व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी। टेल मी व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी, व्हाट आई कैन डू, लेट मी नो। मुझे बताओ टोटल एनर्जी कितनी होगी। What do you think? What is the total energy? How much is the amount? तो यहाँ देखो, यहाँ पे मेरी पूरी टोटल एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द टोटल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एनर्जी अगर मैं वो पोटेंशियल का हल्का फुल्का जो चेंज है अगर मैं उसको इग्नोर करूं, so from here my total energy will become 5/2 mrg. Is this okay? यस। ये समझा सबको मैंने क्या बोला? वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv/v², और मैं कह रही हूँ यही मेरी पूरी टोटल एनर्जी है अगर मैं काइनेटिक पोटेंशियल का थोड़ा बहुत इग्नोरेंस करूँ तो जब मैं पोटेंशियल का थोड़ा बहुत इग्नोरेंस करूँ, so of course this is my total energy and this is my total energy. तो मुझे पता है v मेरा कितना आया है, v मेरा अंडर रूट ऑफ 5rg आया है, vp स्क्वायर की जगह पे मैं अंडर रूट ऑफ 5rg डाल दूं so I'll get 5/2 mrg. This is the total energy I'll get. यस यस मैम। कॉन्सेप्ट तो नहीं सकते वी हाईएस्ट कर सकते हो पर वहां पे आपको थोड़ा मैग्नीट्यूड के साथ जाकर काम करना पड़ेगा। VA माइनस VC करके भी जा सकते हो, यू कैन गो फॉर इट, नो इशू। VA माइनस VC के कंसेप्ट से भी जा सकते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में शायद वही किया है जहाँ तक मेरा आइडिया है, यस मैम। बट आई डोंट फाइंड इट वेरी यूजफुल व्हाइल सॉल्विंग दैट, तो इसीलिए मैंने ये वाला कंसेप्ट ज्यादा बेटर समझा आगे बढ़ने के लिए। You'll get the answer for sure, आएगा तुमको आंसर, मैग्नीट्यूड वाइज आपको जाना पड़ेगा, दैट्स ऑल। आगे बढ़े। So I'm using the concept of total energy over here. So यहाँ पे हम लिख के ले लेंगे बाजू में, total energy is simply 5/2 mrg. Use this.
अब इसको मैं यहाँ भेज रही हूँ 5/2 mRg minus mRg equals to half m Vc square. M got cancelled on the sides. This is basically your 3/2 mRg, that is half Vc square. Half of got cancelled, sorry, m got cancelled, right? So Vc is equals to under root of 3Rg. यहाँ पे लिख लो total energy is 5/2 mRg. हो गया लिख के? Yes. तो No. Vc No. का Yes. वैल्यू आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ Rg. 3Rg. 3Rg. Let's go to the last point. ये आपका आ गया Vc का. आपको Va मिल गया, Vb मिल गया, Vc मिल गया. आप देख सकते हो सबसे हाईएस्ट विल बी एट Vb एंड सबसे लोएस्ट स्पीड विल बी एट Va. VA. ठीक है, चलो अभी टेंशन इन द स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करते हैं. एट द हाईएस्ट पोजीशन तो डिस्कस कर चुके हैं कि टेंशन इन द स्ट्रिंग के साथ क्या एग्जैक्टली हो रहा है. लेट्स टॉक अबाउट द लोएस्ट एंड द मिडवे पोजीशंस. Let's talk about the lowest and the midway positions. Now, if I talk about the lowest and the midway positions, first I'll like to talk about the extreme tensions. ठीक है, जरा एक्सट्रीम टेंशंस के बारे में बात करते हैं, फिर हम मिडवे पोजीशंस के साथ आगे बढ़ते हैं. सो एक्सट्रीम टेंशंस पे मैं बात करूं तो हमने जब एक्सट्रीम टेंशंस के बारे में हमको डिस्कस करना है तो लेट्स टॉक इन द टर्म लाइक दिस. TB minus TA equals to minus 2 mg is equals to m by r Vb square minus Va square. इससे क्या समझ में आया, जरा मुझे वो समझाओ अपना डायग्राम देख के. मैम अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को. फिर से सोचो, हमने जस्ट मॉडिफाई करके हमने पोजीशन पॉइंट एट बी और पॉइंट एट ए को सब्ट्रैक्ट किया है. दैट्स ऑल. जस्ट लुक एट द डायग्राम. ये टीबी पॉइंट है. टीबी पॉइंट का इक्वेशन है ये, सॉरी ये इक्वेशन 3, और टीए पॉइंट का इक्वेशन है ये. मैंने सिंपली क्या किया है, आई हैव जस्ट सब्ट्रैक्टेड द टू, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 3. करके देखो, यही आता है क्या? Yes. Yes. यही आता है. आगे बढ़े, जरा इसको रिजॉल्व करो, सॉल्व करो जरा, आगे जाओ, देखो कहाँ पहुंचते हो. TB minus 2A is equals to 2 mg. इनको रिजॉल्व करो जरा, देखो कहाँ पहुंचते हो ओवरऑल. VB की जगह VB का वैल्यू डालो, VA की जगह VA की वैल्यू डालो, और देखो विच रिलेशन यू रीच.
and I want everyone to do this. मैं जिसका नाम लूंगी वो मुझे आंसर बताएगा. VB की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ कैलकुलेट करके, VA की वैल्यू मैं आपको बता चुकी हूँ कैलकुलेट करके. आपको जो सब्स्टिट्यूट करना है और एक ओवरऑल रिलेशन पे आना है. TB minus TA equal to 6 mg. Yes. So if you resolve this after putting the values of VBs and VA, you'll find that TB minus TA equals to 6 mg. सबको ये आ रहा है? Yes. Yes. ठीक है. Next. Give me the relation between now TC minus TA. That will be of course equal to TD minus TA. कितना जा रहा है? Let me know. Think about it and answer. Just look at the diagram again. TC is totally responsible for the centripetal force now. So of course here your TC will be equal to MVC square by R. TC is MVC square by R. Yes. And already you have a relation for TA. TA के लिए तो हमने किया ही है ना चीजों को find out. So if you go for TC minus TA, इसको equation number कुछ डाल दो. What is the equation number? Fifth. Subtracting equation first and fifth. So basically TC minus mg minus TA MVC square by R minus substitute the values. यहाँ पे लिख लो subtracting equation 1 from 5th. Substitute VC and VA and find out what you're getting the difference between the two tensions. मैम Yes, TC 3 minus mg, TA equal to 3 mg आया 3 Yeah. 3 mg. Yes. TC minus TA is equals to 3 mg. TMG. So these are the conditions for the tension at the extreme positions. Difference in tension in the extreme position. ये हो जाए तो let me know. And the last one that I want to talk about at any arbitrary position. टेंशन रिजॉल्व होगा. Yes, of course होगा. इसलिए मैंने कहा था डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाना. We are going to resolve the tensions. Or you can also resolve mg, that depends. आपकी बुक में mg को resolve किया तो will go for that. ये mg का डायरेक्शन है पूरी तरीके से नीचे की तरफ. Can you see the diagram? Yes. Yes. Now, if this is a mg part, ये ऐसा जा रहा है. Try to have a 90 degree, perfect 90 degree. So this is theta. This becomes your mg cos theta, and this becomes your mg sin theta.
ये आपका mg cos थीटा और mg sin थीटा, आपका टेंशन भी इसी डायरेक्शन में लगने वाला है. सो mg cos थीटा और mg sin थीटा दोनों मिलके सेंट्रीपिटल के लिए mg cos थीटा और टेंशन दोनों मिलके सेंट्रीपिटल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. Are you understanding what I'm trying to say? Yes. Yes. ये रिजॉल्व करके लो, इसको थीटा लो, mg नीचे की तरफ डालो, mg के दो कंपोनेंट्स बनाओ इस पॉइंट पे. दिस इज योर थीटा और mg का t का डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है, वो भी शो करो. लेट्स ड्रॉ दिस. We are not talking about at any arbitrary position. So let's take this as the first arbitrary position. mg नीचे की तरफ है, mg के दो कंपोनेंट्स रिजॉल्व होंगे फॉर श्योर. This is a theta. mg cos theta. This is mg sin theta. Try to have this as a 90 degree. Now, tension in the string is also in this direction only. If I talk about this point, अगर इस पॉइंट की बात करूं तो mg नीचे की तरफ होगा, इसको अगेन वी हैव टू रिजॉल्व. This is now I'm saying the angle as alpha. So this is mg, this is mg sin alpha, this is mg cos alpha. At this point, your mg sin alpha, this is mg cos alpha and this is mg sin alpha. ये cos है क्योंकि ये अल्फा बन रहा है. At this point आपका टेंशन और mg cos alpha दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा. टेंशन is somewhere here. Can you see the part? Yes. 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 Just resolve the two and then write what I'm writing. First point, force due to tension and weight are not along the same line at any point. ये पॉइंट पे भी देख लिया, ये पॉइंट पे भी देख लिया. And they are not perpendicular also. Arbitrary position पे दोनों कंडीशन नहीं मिली देखने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट है. मैम जूम सॉरी, अब ठीक है. ये पॉइंट Yes. कि किसी भी पॉइंट पे ना तो हमको टेंशन और वेट एक लाइन में मिला और ना ही परपेंडिकुलर मिला. एट आर्बिट्री पोजीशंस आई एम टॉकिंग अबाउट. हमने जो पोजीशंस ए बी सी डी वाले थे उनको छोड़कर हम बातें कर रहे हैं. मैम थोड़ा जूम आउट क्या करूं? जूम आउट बस. Yes. ठीक है, Yes. Yes. नेक्स्ट है next is you can see that tangent
tangential component of weight is responsible for speed. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में mg sin थीटा या साइन कंपोनेंट काम कर रहा है पूरी तरीके से. So tangential component is responsible for change in speed or change in velocity. Actually change in velocity word गलत होगा, change in speed. This is your tangential component. यहाँ पे स्पीड अप स्पीड डाउन करना है, इसके लिए कहीं ना कहीं mc sin थीटा बहुत हेल्प कर रहा है. यहाँ पे भी एवरीवेयर यू कैन सी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये आपके वेलोसिटी का डायरेक्शन है. तो ये आपके वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक्ट करके ये कहीं ना कहीं वेलोसिटी को सपोर्ट करने वाला है चेंज करने के लिए. सपोर्ट करने वाला इन द सेंस इट इज समवेयर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्पीड. Increase in velocity. Somewhere increasing, somewhere decreasing for sure. Yes. Yes. यहाँ पे इंक्रीजिंग होगा, यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा. आपको इस तरह मैम ऊपर जाते वक्त डिक्रीजिंग होगा, नीचे आते वक्त इंक्रीजिंग. यस ऑफ कोर्स. यहाँ से देखो ये ऊपर जा रहा है ना, हमने Yes. एंटी क्लॉकवाइज मोशन लिया था स्टार्टिंग में, तो ये चीज लिख लो. While going up, speed decreases, and while coming down, it increases. लास्ट पॉइंट जो यहाँ पर नहीं, यहीं पर स्टार मार्क करके लिख लो कि अगर यही जो आपका मास है वो रॉड को अटैच होता तो टेंशन का कोई गेम ही नहीं होता वहां पे. देयर इज नो प्ले ऑफ, देयर इज नो पिक्चर ऑफ टेंशन. क्योंकि वो रिजिड रॉड होता. एंड देन एट हाईएस्ट पोजीशन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी वेलोसिटी 0 हो जाती. बट इट शुड बी अ रिजिड रॉड फॉर श्योर. स्ट्रिंग है तो टेंशन का रोल है. अगर रिजिड रॉड को अटैच किया तो देयर इज नो रोल फॉर टेंशन. एंड इफ देयर इज नो रोल फॉर टेंशन, it means at a higher position your velocity can go to 0. यही डिफरेंस है आपके रॉड वाले पेंडुलम में और आपके स्ट्रिंग वाले पेंडुलम में. स्ट्रिंग वाले पेंडुलम में टेंशन बहुत सारे जगह पर बहुत रोल्स प्ले करता है. रॉड वाले पेंडुलम में उसका कोई पिक्चर में कोई रोल नहीं है. हो गया? Yes. 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 यहाँ पे आपका सर्कुलर मोशन का पार्ट जो है खत्म होता है चैप्टर का. सम्स पहले मैं आपको भेजूंगी, आप लोग ट्राई करोगे, उसके बाद मैं सिखाऊंगी. डायरेक्ट नहीं सिखाने वाली. बिफोर दैट, बिफोर गोइंग टू द रोटेशनल पार्ट ऑफ द चैप्टर, अ न्यू पिक्चर स्टार्ट्स. मेक इट इन माइंड. मतलब एक नई स्टोरी के साथ पढ़ने वाले हो बाकी. एक ऐसा पार्ट खत्म हो चुका है जो आपके लिए पर्टिकुलरली एक चैप्टर था. अगर आप प्रीवियस बुक्स देखते 2 साल पहले की बुक, अभी की बुक की बात नहीं कर रही हूँ मैं, सिलेबस चेंज होने वजह पहले वाली बुक्स में इट वाज अ डिफरेंट चैप्टर. ठीक है, जो हमने खत्म किया. इट वाज
एंड इट हैव अ गुड वेटेज इन बोर्ड्स आल्सो एंड इन एंट्रेंस आल्सो। तो इसका समझना बहुत जरूरी था, जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई है। जिनको समझा है, जब आप एंट्रेंस करोगे तो वो बहुत यूजफुल होने वाला है। और अब जो हम करने वाले हैं, इट इज ऑफ कोर्स दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर फॉर श्योर, बट नाउ द पिक्चर्स विल बी इन अ डिफरेंट वे। लाइक अब हम सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, इन सब गलियों से बाहर निकल जाएंगे और कुछ नई चीजों की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। और ये पढ़ाते वक्त मैं थोड़ा सा हायर लेवल लेकर जाऊंगी, मतलब आपकी बुक से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम, कि आपकी बुक में बहुत ही ज्यादा लोअर लेवल पे दिया है, तो बुक से थोड़ा ऊपर जाएंगे हम सीखने के लिए। ऑफ कोर्स रिलेटेड पोर्शन अगेन आई एम नॉट गोइंग टू टीच, आपको वो जेई का एंट्रेंस करवाते वक्त ही मैं सिखाऊंगी, बट जो भी मैं सिखाऊंगी मैं उसको थोड़ा सा ऊपर के लेवल तक लेकर जाऊंगी, ठीक है। सो बिफोर दैट व्हाट आई वांटेड टू डू, 5-10 मिनट, 5 मिनट का टाइम लो, गो थ्रू करो। कहीं पर कुछ नहीं क्लिक हो रहा है तो जरा मुझे बताओ। और ये काम आप कैमरास ऑन करके करोगे, स्विच द कैमरास ऑन एंड पुट इट समवेयर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई सो के उठ के बैठा है तो भी, आई डोंट रियली केयर, फर्क नहीं पड़ता मुझे। आई जस्ट वॉन्ट यू टू वर्क ऑन इट, दैट्स ऑल। दैट इज ओके इवन इफ यू वेक अप एट 7 o'clock and you're sitting for the lecture, I don't care. I just want you to see you people revising, that's all. ये 10 लोगों को छोड़ के बाकी लोग क्लास में नहीं है क्या? छोटे बच्चे हो क्या? एक एक करके सी कीप इट इन माइंड। अगर आप लोग इस तरीके से बिहेव करोगे ना, मैं प्रैक्टिकल सेशंस में बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी फिर, क्योंकि मुझे समझ जाएगा कि आपको मैं कंट्रोल नहीं कर सकती 104 के बीच में। फिर वहां कंट्रोल चालू होगा तो फिर भारी पड़ जाएगा आप पे। एक और बात, नेक्स्ट प्रैक्टिकल सेशन ऑनवर्ड्स आप लोगों का नोट्स चेक होगा, नोट्स कंप्लीट करके लाओ। अब तो क्लास में नोट्स लिखवाए हैं तो नोट्स होने चाहिए। कुछ नोट्स मैंने भेजे भी हैं जो मुझे लगा है कि ओके इंपॉर्टेंट है भेजना, तो मुझे नोट्स कंप्लीटेड चाहिए। कोई भी इनकम्प्लीट नोट्स लेके बड़ी बड़ी कहानियां नहीं बताएगा मुझे। स्टार्ट रिवाइजिंग। देखो कुछ डाउट है तो पूछ लो। आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का पेपर कब है? Sunday. संडे। नेक्स्ट संडे, यस क्या आने वाला संडे, आई मीन टू से यस Yes. 1 वीक, ठीक है। क्योंकि मेरी तरफ से आपके लिए कुछ होमवर्क जाने वाला है, इसलिए मैंने पूछ लिया, हैवी नहीं होना चाहिए। आशुतोष है ना बैच में? आशुतोष तू है बैच में? देविका बच्चे कैमरा ऑन कर। ऑन है मिस। ओके, रिया कैमरा ऑन कर।
कनाद, सपने से उठ जा, सुबह हो गई है। डेरिवेशंस वगैरह अच्छे से देखो, सारे स्टेप्स क्लियर है क्या, रिजॉल्व कैसे किया है वो क्लियर है क्या, स्टेटमेंट्स क्लियर है क्या, कहीं पर कुछ क्लिक नहीं हो रहा है तो पूछो। दैट इज ओके, आई विल रिपीट इट अगेन। अंजलि, इतना अंधेरे में बैठी, कुछ दिख रहा है क्या नोटबुक में? हाँ मैम, लाइट गई हुई है। ओके। जेनिफर, चीजें क्लियर है? यस मैम। सुचेत, कैमरा किधर गायब हो गया, सो गया तू? नो मैम, डिस्टरबेंस हो रहा था इसीलिए। ओके। सोने में कि पढ़ने में? यस मैम। मैं बोल रही हूँ सोने में डिस्टरबेंस हो रहा है कि पढ़ने में डिस्टरबेंस हो रहा है? ओके।
देविका जाग रही है ना? हाँ मैं ओके, बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड ये सब्जेक्ट इतना भी प्यारा नहीं लगता होगा आपको कि आप लोग को जगा दे। मेरी आवाज बड़े खतरनाक लगती होगी, वो बात अलग है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है रिकॉर्डिंग सुन के, इसलिए पूछ रही हूँ। दिमाग रिपीट कर रहा है जो भी चीजें समझाई है, क्या पढ़ा है, क्या समझा है। हुआ तो आज मैं बहुत सारे सम्स आप लोगों को सेंड करने वाली हूँ इन पीडीएफ, बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन, totally based on circular motion. Try to solve it. Are you people done? Or you want more time? शुभम और तेजस दोनों गायब हो गए क्या? मुझे दोनों में से एक भी नहीं दिख ओ रहा। मैम, चालू है कैमरा। शुभम सो गया? नो मिस, वो बार बार पीछे चला जाता है कैमरा। अच्छा, ठीक है। आई नो आप लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक पे फोकस कर रहे होगे, बट स्टिल ट्राई करो कि नेक्स्ट सेशन में इस चैप्टर के जो भी डाउट्स है वो क्लियर करके ले लो मुझसे। फ्लो में है, चीजें फटाफट समझ जाएगी। कुछ रीड करते वक्त या पढ़ते वक्त नहीं समझ में आता है तो लेट मी नो कि मिस ऐसा हो रहा है, so that I can repeat and I can make your things very very clear. मेरे को एक बार रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी चीज एक बार क्या 4 बार भी रिपीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आई एम ओके विद दैट, ठीक है। सब कुछ पढ़ते वक्त बस इतना याद रखना कि पिटल को हमेशा इनर्शियल फ्रेम में पिटल लेकर डिस्कस किया जाता है, बट फ्यूगल आप तभी बोलते हो जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में आते हो। दोनों जगह पर बोलने के तरीके अलग होता है। इनर्शियल फ्रेम में आप ये बोलते हो कि आपको कोई भी चीज पिटल बनाकर दे रही है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप ये स्टेटमेंट यूज करते हो कि वो जो भी चीज पिटल बनाकर दे रही है वो फ्यूगल को बैलेंस कर रही है। यही स्टेटमेंट का डिफरेंस आता है, समझ में आया? जब आप लैब फ्रेम में होते हो चीजें चल रही होती है, बट जब आप उस फ्रेम में खुद बैठ जाते हो जाके तो आपके लिए कोई भी चीज नहीं चल रही होती, सब चीज रेस्ट पे होती है। ये कुछ पॉइंट्स है जो दिमाग को हमेशा याद दिलाते रहना है। फ्रिक्शनल फोर्स इज अ एडजस्टिंग फोर्स, अपने हिसाब से एडजस्ट करता है।
ठीक है, कोई चीज नहीं चाहते हो कि उड़कर बाहर चली आए, तो उसका एक ही कंडीशन है, पिटल और फ्यूगल उस फ्रेम के अंदर जाकर पिटल और फ्यूगल सेम हो जाए। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंट्रेंस में भी थियोरी में भी, तो ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। आप लोग अगर एक आपका जो रोलर कोस्टर होता है, कुछ एग्जांपल्स है जहां पर ये पिटल फ्यूगल बहुत अच्छा काम करता है। आपने रोलर कोस्टर्स वगैरह देखे, कभी कभी सोचा भी होगा ये पूरा वर्टिकल सर्कल ले लेता है पर कोई भी वहां से बाहर नहीं गिरता। इट टेक अ होल वर्टिकल। मैम हम लोग ब्लॉक्ड रहते हैं, ऑफ कोर्स ब्लॉक्ड रहते हो, ब्लॉकिंग तो वो लोग पूरी तरीके से वो पिटल फ्यूगल पे आपको नहीं छोड़ सकते, आपका लाइफ भी तो सेफ्टी है, बट फिर भी आप टर्न आउट नहीं होते। टर्न नहीं होने का रीजन, वो पॉइंट पे भी जब कोई चीज सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो जब वो वर्टिकल पोजीशन पे जाता है वहां पर भी पिटल और फ्यूगल बैलेंस करते हैं। वो उसी स्पीड में चलते हैं जहां पर उतना ही स्पीड वो लेके जाते हैं कि ना तो आप उड़कर बाहर चले जाओ और ना तो आपको पिटल खींच कर नीचे सेंटर में ले आए, बैलेंस्ड रहे और आराम से आप रोलर कोस्टर का पूरा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सको। कभी ऑब्जर्व करके देखना कि जब आप हाईएस्ट पोजीशन पे जाते हो ना, वो लोग जानबूझ के अपने गाड़ी का स्पीड एकदम तेज कर देते हैं। रोलर कोस्टर की स्पीड काफी हाई होती है उस पॉइंट पे, कि वो पिटल को पूरी तरीके से बैलेंस करे और नीचे की तरफ आप ना गिरो। सेम हैपेंस अगर आप एक पानी का बाल्टी लो और काफी स्पीड में उसको गोल घुमाओ, तो ऊपर जाने के बाद भी पानी है ना गिरेगा नहीं। अगर उल्टी बाल्टी हो जाती है, बाल्टी टर्न हो जाती है, उसका जो ओपनिंग है वो नीचे की तरफ आ जाता है और आपने बहुत स्पीड से उसको घुमाया, तो वहां पर पिटल और फ्यूगल बैलेंस करके पानी नीचे नहीं गिरने देगा, पर आप उतना फास्ट कर नहीं सकते। दैट इज ऑल्सो द पार्ट। अब बाल्टी उठा के एक बाथरूम से दूसरे बाथरूम में ले जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। तो गोल घुमाना मतलब फिर मम्मी और गिर गया तो उसके बाद तो जो मम्मी या जो घर पे पोछा मारता है वो करेगा, वो तो अलग ही फिनोमिना में जाएगा एकदम। और खुद मारते रहोगे तो बात अलग है, तो खुद ही सर पटकोगे कि वापस अब पोछना पड़ेगा। राइट, चलो, so this was all about some of the concepts which are used in centripetal and centrifugal. ट्राई कर सकते हो, पर बाल्टी वाला ट्राई मत करो। चलो आगे जाते हैं टुवर्ड्स द रोटेशनल डायनेमिक्स, प्योर रोटेशनल डायनेमिक्स। जरा रोटेशनल की दुनिया को समझते हैं। ये चैप्टर का रोटेशनल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू। ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली बोला जाए तो। फिजिक्स का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से है, और आपके सीटी, जेई और थ्योरी तीनों का फेवरेट है, क्योंकि बच्चों तीनों में अटक जाता है इसमें। दिस इज मैकेनिक्स, दिस पार्ट ऑफ द फिजिक्स इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स। जो केटीजी और थर्मो पढ़ते हो दैट इज थर्मल। तो मैकेनिक्स पार्ट इज समथिंग की जहां पर बच्चे बहुत जल्दी फंस जाते हैं, क्लिक होना जरा मुश्किल होता है यहाँ पे, और कभी कभी गेम भी कुछ अलग चल जाता है। दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू। So let's understand about the things. Okay. Before starting the video, I would like to discuss something with you about the rotational dynamics. Rotational dynamics है ना बच्चों, एक अलग ही दुनिया है। मतलब when you are talking about a linear speed, when you are talking about everything in a linear condition, rotational dynamics में ना सिर्फ और सिर्फ स्पीड काम नहीं करता है, कुछ और भी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करती है इन रोटेशनल डायनेमिक्स। और वो क्या है वो देखते हैं जरा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। और आप लोग को वो वीडियो दिखा रहा था, सॉरी मैं वो भूल गई देखने के लिए, नेक्स्ट टाइम पक्का दिखाऊंगी, श्योर। जस्ट गिव मी अ टाइम, आई विल शो यू द वीडियो। पहले वो दिखाती हूँ, वरना मैं भूल ही रहूंगी, याद नहीं आएगा मुझे। जस्ट गिव मी सेकेंड, तब तक तुम लोग रिवाइज करते रहो, मैं तुम लोग के लिए वो वीडियो सर्च करती हूँ।
Pratibha ma'am, can you allow me screen sharing? Hello. कौन है यहाँ पे? आदि मैम और प्रतिभा मैम, who is here? Can you please allow me your screen sharing? Host, are you there? Hello. I think हमारे host सो चुके हैं फिजिक्स पढ़ के. Just wait for a while. Just wait. Madhuri ma'am, are you here? Hello. जाने दो. जग गए. Hello. हाँ बोलो. मैम मुझे जरा स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कीजिए ना प्लीज. Okay. So let's have a look. He was one of the greatest physics professor. Of course, he got retired. And ये यहाँ के lectures की video नहीं है, ये भी surety है. क्योंकि यहाँ पर ऐसे पढ़ा पाना इस नामुमकिन. मैं ऐसे पढ़ाने लग जाऊंगी तो सिलेबस ही नहीं होगा. और Yes. दूसरी बात, मुझे उतना स्पेस भी नहीं मिलने वाला जितना बड़ा स्पेस उनको मिला है पढ़ाने के लिए. बट ये श्योरिटी है कि इस तरीके से पढ़ने में शायद एक अलग ही मजा आता होगा. मैंने भी नहीं पढ़ा है. इवन आई एम फ्रॉम इंडिया. एंड हाँ, बट द इंस्टीट्यूट्स लाइक IITs और बाहर जाओगे तो मैंने वहां पे ये चीजें एक्सपीरियंस की है. तो सिर्फ हमारे सिस्टम में ऐसा नहीं है. जब आप थोड़े से हायर बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो आपको काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है. ये बात भी सच है. मेरा एक्सपीरियंस है कि वहां पे आपको बहुत अच्छी चीजें मिलती है. तो वो ट्राई कर सकते हो. जस्ट और सिर्फ वीडियो ही देखने का. Walter Levin. Yes, he was one of the greatest physics professor ever. MIT का है. MIT का है. He's trying to prove the time period of a pendulum. वॉइस में है. नहीं आएगा बच्चा. मैं लिंक शेयर कर दूंगी. मैं वो क्या बोल रहे हैं मैं समझाती चली जाऊंगी. डोंट वरी. ही इज सेइंग दैट कि पेंडुलम कभी भी अपना एम्पलीट्यूड चेंज नहीं करता. आप कितना भी दे दो, उसका एम्पलीट्यूड एक पॉइंट तक फिक्स्ड होता है. वॉट एवर यू ट्राई, उसके ऊपर कभी नहीं जाता. बोल रहे हैं कि इससे हायर इट कैन नॉट टेक द एम्पलीट्यूड. उसका एम्पलीट्यूड का अमाउंट इज फिक्स्ड. Now he is going to replace himself and will try to look at the amplitudes. He's going to stand at that point and he's going to give the amplitude to the pendulum. And of course, see the point where he's giving the amplitude.
Oh my God. It was not there, I think so, in this video. It is there. Just can you look at the amplitude? मीन्स आप जितनी भी काइनेटिक एनर्जी देते हो उतनी पोटेंशियल कन्वर्ट होके वो रिटर्न बैक चला जाता है. दैट इज व्हाट ही वांटेड टू एक्सप्लेन. उसके ऊपर वो नहीं जाएगा. इट विल रिटर्न बैक. दैट इज द एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. In this video, he is just explaining that whatever kinetic energy you give at the point of your suspension जब आपने start किया, so it will have a fixed amplitude. मतलब वो point तक उसका kinetic से potential convert हो जाएगा. एक ऐसा point आएगा जहाँ पर वो rest पे थोड़ी देर के लिए जाएगा and again then it will go to its mean position. So this is how it is going to continue. उससे ऊपर का amplitude नहीं जाएगा. It will not go. For sure it will not go. And the second video which I wanted to show, just wait for a while. I didn't got that one. That is related to the length and the mass of the pendulum. Just give me a second, I'll show you that also. Where himself, he was sitting on the pendulum and he was trying to show that the mass on the pendulum does not matters. That is the bob of the mass of the bob of the pendulum does not matters. Just wait for a while. He is counting the amplitude, he is counting the time period and the frequency. Now he's reducing the length and he's trying to see the time period. Here it was six oscillations in 1 second. Now he's reducing the length and he's trying to see the things. So he said that the frequency reduces. It means, sorry, if you reduce the length, the time period reduces for a particular frequency. So he is just explaining that length of the pendulum matters a lot when you go ahead with the things. I'll send you the link. You can see it again. Yes. Now he's going to explain the mass dependency. Now he's counting the time period for the pendulum with that particular bob. He's counting the time period with the help of this bob. And he got the time period as 45.70.
Now we will have a look when he'll sit on the bob and he'll try to find out the things. He has theoretically calculated also, and he got the answers to be matched. Now he is going to sit on the pendulum and try to find out the time period. Now he is going to prove the mass of the object. It is independent of the mass of the object. He is asking to the students that is it a mass dependent or not? Let's see it. He's just explaining that he is going to make himself horizontal on the bob so that उनका height matter नहीं करना चाहिए. Now he is asking his students to count the number of oscillations that for that particular seconds. The time is again 45.60. So what he have basically done, I'll tell you that. First, he solved it theoretically. Okay. And of course, when he was sitting on that pendulum, he was facing a problem, of course, for sure. So the thing was, he calculated the things theoretically and he estimated the value. Okay, I should get with the help of a length and with the gravity where he is, I should get this much time period for a particular oscillation. Okay, he took the 10 oscillations as a thing. Okay, I'll count time period for my 10 oscillations. When he estimated and then he tried with the help of a what I can say, with the help of a pendulum ka bob. First he tried with that. I'm talking about the mass dependency now. So when he tried with the help of a ball, he found out that the estimated and the one he got with the experiment was approximately same. See, there are some errors always, but that errors can be neglected. It was a small amount of error. So somewhere he was getting the time period as 40.57 and by the observation he got it as 40.7 something. Okay. And then what he said that he is going to sit on the pendulum and he will try to have the time period for the 10 oscillations again. Okay. So just fix the number of oscillations and then see what happens with the time period. Basically ये वो बोलना चाहते हैं कि हम लोग number of oscillations fix करते हैं और देखते हैं कि time period के साथ क्या होता है. Sorry. Again, now he is sitting on the pendulum. And when he is sitting on the pendulum, he said that he is going to be horizontal. Because उनका height जो है length में difference ला देता और चीजें change हो सकती थी. So he said that he will try to make himself horizontal so that height का ज्यादा problem ना आए, सिर्फ mass का contribution देख सकते हैं.
So when he tried to sleep on that particular pendulum ka bob, and he told his students ki, okay, you count down the number of oscillations, and once our oscillation will be done, like for 10 oscillations we are counting the time period, so we will stop the stopwatch. And when he did the same, he found that the time period was again 40.60, which you observed in the video, right? So it showed that mass of the bob does not matters when you calculate the time period of a pendulum. And in the first experiment where he shown that the amount of kinetic energy you are giving at the starting, वो amplitude जो होगा, it will be a fixed amplitude. Okay, like अगर आपने एक certain particular level से आपने उसको एक amplitude दिया है, तो वो उस point के ऊपर नहीं जाएगा, वो अपने एक fixed amplitude से वापस return back हो जाएगा. That is what he wanted to show you, कि उन्होंने अपने सामने अपने चिन से एम्पलीट्यूड दिया, एंड ही सेड दैट कि ओके आई एम गिविंग इट फ्रॉम हियर, अगर ये इससे ऊपर जाता है तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम विद द प्रोफेसर. सो ही ट्रस्टेड फिजिक्स एंड ही वेंट अवे विद द एक्सपेरिमेंट, एंड he found out that of course at that highest position, from that highest position pendulum turns back, because जितनी काइनेटिक है पूरी कन्वर्ट होने के बाद पोटेंशियल वो उससे ऊपर नहीं जा सकता. That is not possible. And even friction and everything is there. अगर friction और सब कुछ है भी तो friction वगैरह उसका amplitude बढ़ाने में मदद नहीं करने वाला है. Of course amplitude कम करने में ही मदद करेगा, because friction की वजह से energy loss होती है, energy gain नहीं होती है. That is very sure. So this is what he did to explain you with the first experiment, that amplitude is going to be fixed. Second experiment was related to the time, it was related to the length. He reduced the length and he tried to find out that is there any dependency of time period on the length. हमने derivation में भी देखा है, right, कि there was a dependency, and that dependency was tried to explain कि जब मैं length change करता हूँ तो time period of the pendulum change हो जाता है. Okay, and the third one was related to the mass. So these are the three experiments he did to explain about the pendulums. ठीक है. So somewhere whatever you study theoretically, taking the ideal conditions, आपका real life में भी it get matched with each other. So physics is all about theoretical and experimental matching. अगर आप कोई theory कर रहे हो और अगर वो experiment से match नहीं हो रहा है, तो either your experiment is wrong, either your theory is wrong. That is very sure. दोनों के जब तक observations match नहीं होते हैं तब तक हम चीजों के साथ आगे नहीं बढ़ सकते. And that is why publishing paper in a physics is a very big deal. क्योंकि लोग theory में बहुत कुछ लिख ले जाते हैं, पर उसको जब experimentally हमको prove करना होता है, तो सबसे पहली चीज है वो बेसिक लॉस को रॉन्ग प्रूफ नहीं करना चाहिए. अगर वो बेसिक लॉ को रॉन्ग प्रूफ कर रहा है, मैम ऐसा हो नहीं सकता क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है, पर अगर आप ये सोचो कि अगर आप बेसिक लॉ को रॉन्ग प्रूफ करोगे तो इस दुनिया में जितने भी लॉज बने हैं जो आज तक वैलिड होते आए हैं वो सब रॉन्ग प्रूफ हो जाएंगे, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? होल फिजिक्स कैन नॉट बी रॉन्ग. हाँ, बट अ फिजिक्स कैन चेंज मेनी थिंग. आप एक ऑब्जर्वेशन बहुत सारी चीजों को चेंज कर सकता है, दैट इज वेरी श्योर. ठीक है. So this is how your physics things goes. So this was all about the videos. You can find many more videos of Walter Levin on the YouTube, and this is how physics is teach. I believe this is how physics is teach. But basically for the teachers in India, education system in India, that is not possible. And that will be never possible for at least till 12, 13 or BSc level. I have experienced these things in MSc level. वो भी when I went to outside for my project purposes and everything. When I went to TFR or when I went to BARC for the project purposes or any other things, then I came to know कि okay, we have such experiments where we experience the things. Okay, in laboratory आप इसी घाई में रह जाते हो कि आपका रिजल्ट आ जाए, आपका जर्नल सबमिट हो जाए, आपका काम हो जाए, बस उतना ही आपके दिमाग में होता है. आप चाहो तो वहां पे भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, वहां पे भी आपके पास पेंडुलम होता है, यू कैन सी द ऑसिलेशंस, बट हम लोग उस माइंडसेट में नहीं होते. वहां पे हमारा माइंडसेट एक ही होता है कि वी हैव टू कंप्लीट अवर जर्नल, बिकॉज उसका सबमिशन करने के बाद हमको जेई के लिए भी तो प्रिपेयर करना है, वो भी तो बात है. सो दिस थिंग्स आर देयर फॉर श्योर. जस्ट वांटेड टू से कि फिजिक्स को समझना है तो इमेजिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू इमेजिन, once you observe the videos, आपको imagination हो रहा है तो चीजें can go right. ठीक है. So here we will stop and we'll start with the rotational dynamics for the next lecture.
फॉर श्योर। आपको चाहिए तो मैं वीडियोस भेज दूंगी, और अगर कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे पास रहे तो मैं वो भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी। हालांकि HC वर्मा के बहुत सारे आई इंट्रोड्यूस इन द क्लास, HC वर्मा के बहुत सारे सर्टिफिकेट लेक्चर्स चलते हैं, वहां पर वो एक्सपेरिमेंटल, आपका 11th-12th स्टैंडर्ड, बहुत हाई स्टैंडर्ड की चीजें नहीं बताते वो लेक्चर्स लेते हैं। उनका खुद का HC वर्मा का पोर्टल चलता है, वो स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। वहां पर लाइव लेक्चर्स होते हैं, HC वर्मा वहां पर खुद पढ़ाते हैं आकर, ठीक है। ही इज एन प्रोफेसर फ्रॉम IIT कानपुर, रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम IIT कानपुर, फिजिक्स प्रोफेसर। वो आपको सारी चीजें जो भी आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो वो ट्राई करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वो आपको दिखा सके। सो अभी तो यू पीपल आर वेरी बिजी, तो जब टाइम मिले तो आप जरा सा वो गो थ्रू करना और उनके वो सर्टिफिकेट कोर्सेज ज्वाइन करने की कोशिश करना। यू विल गेट लॉट्स ऑफ नॉलेज देयर, बहुत सारे नॉलेज वहां पे मिलता है, ठीक है। सो मेरे पास जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आई सेंड टू द MBC सर, इफ यू पीपल वांट टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर कोर्स यू कैन, बट अभी वो नहीं आया है, वो थोड़ा टाइम लेगा आने के लिए, तो जब आएगा तो आई लेट यू नो, ठीक है। चलो बाय।